Very good morning. Today, solution of CT2. Question number 1. Find the least number when added to the number 2086, it becomes a perfect square. Also find its square root. So first of all, we are going to find the square root of 2086 by long division method. 2086 इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पहले पेयर करेंगे, पेयर करने के बाद डिवाइड करते हैं। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 ज़्यादा हो जाएगा, 4 4 जा 16। सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर ऐड करेंगे। 4 + 4 8, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 - 16 तो 4। पेयर आ गया 8 6। 5 6 से ज़्यादा हो जाएगा। 1 6। It means 2086 is more than the square of 45, but it is less than a square of 46. Therefore, 2086, it is more than 45 square, but it is less than 46 square. A square of 46 or 45 square, 2025. 46 square, 2216. So now find the least number when it added, यानी इसमें कितना ऐड करें। Hence, least number which to add in 2086 to be a perfect square, that is 2116 minus 2086, that is equal to 0 30. तो 30 इसमें ऐड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट, हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 2086 plus 30, that is equal to 46. Answer. Now question number 2. Solve exponential equation. 4 exponent x minus 4 exponent x minus 1 is equal to 24. Here we use laws of exponent. X exponent a minus b, it is equal to x exponent a divided by x exponent b. 4 exponent x minus 1, it is written as 4 exponent x divided by 4 exponent 1. जब बीच में इक्वल टू तो शुरू में और लिखेंगे, और 4 exponent x
माइनस 4 एक्सपोनेंट x डिवाइडेड बाय 4 एक्सपोनेंट 1 नहीं लिखा जाता है, दैट इज इक्वल टू 24. और टेकिंग एलसीएम हियर, 4 is LCM, 4 into 4 exponent x minus 4 exponent x is equal to 24. मल्टीप्लाइंग 4 to 24, 24 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. और 4 into 4 exponent x, 4 exponent x को a समझे तो 4a minus a तो 3a, 4a minus a तो 3a, 3a 4 exponent x is equal to 4 into 24, 96. 4 into 24 is 96. और 4 exponent x is equal to 96 divided by 3. 96 divided by 3, 32. और 4 exponent x, it can be written as 2 exponent 2 whole exponent x. 4 exponent x, 2 exponent 2 whole exponent x is equal to 32. 32, 2 exponent 5. In exponent of exponent, multiply the exponent without changing base. So 2 exponent 2 into x, 2x is equal to 2 exponent 5. Here base identical. In exponential equation, exponent must be equal. Or 2 exponent 2x is equal to 2 exponent 5, or 2x is equal to 5. 2x is equal to 5, or x is equal to 5 divided by 2, 5 by 2. X is equal to 5 by 2. That is the solution. Question number 3. A man, 120 men work daily to complete a work in 30 days. After 5 days, 5 more men join the work team. How long it will last to complete the work? यानी एक काम को 120 आदमी मिल करके कर रहा है, जो कि 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगा. 5 दिन काम होने के बाद 5 और आदमी ज्वाइन कर लेता है उस टीम में को, उस टीम को और 5 आदमी ज्वाइन कर लेता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 5 दिन काम हो गया, इसका मतलब 25 डेज और काम होना था, लेकिन 5 आदमी और बढ़ गया तो काम जल्दी हो जाएगा, 25 से कम लगेगा. यानी नंबर ऑफ मैन बढ़ गया तो डेज की संख्या घट जाएगी. इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इन्वर्स वेरिएशन. क्वेश्चन नंबर 3. वेरिएबल्स आर, वेरिएबल्स आर, कौन सा वेरिएबल है? द नंबर ऑफ मैन, it is variable x, and number of days, it is variable y. Since number of days depends on number of men, so it is dependent variable, variable y. Now, number of men, number has no unit, it is variable x. Number of days, number has no unit, it is variable y. यदि 120 मैन काम करता 5 दिन के बाद, 120 मैन ही काम करता तो 25 डेज लगता. 120 मैन काम करेगा तो 25 डेज और लगता काम होने में, क्योंकि 5 दिन तो काम बीत गया.
तो बाकी जो बच गया 30 में 5 दिन काम हो गया तो 25 डेज में कंप्लीट हो जाता यदि 120 मैन काम करता तो। अब क्या है तो 5 मैन और आ गया 120 और प्लस 5 मैन और आ गया 5 मैन ज्वाइन कर दिया वर्क टीम को तो 25 डेज से कम लगेगा। कितना दिन लगेगा तो ए डेज लेट 120 के बदले 125 मैन आ गया तो कितना दिन में काम समाप्त होगा 25 से कम लगेगा। कितना दिन तो लेट माना 125 मैन मिल करके 8 डेज में कंप्लीट करता है। तो सिंस x इज इनवर्स वेरिएशन टू y, x जो है वह y का इनवर्स वेरिएशन है। नंबर ऑफ मैन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ डेज घट जाएगा इनवर्स वेरिएशन। x इज इन इनवर्स वेरिएशन तो जब इनवर्स वेरिएशन हो तो मल्टीप्लाई वर्टिकली, डायरेक्ट वेरिएशन हो तो मल्टीप्लाई डायगोनली। देयरफॉर ये मस्ट है लिखना देयरफॉर a इंटू 125 a इंटू 125 इज इक्वल टू 25 इंटू 120 और a इक्वल टू 25 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 125 5 जा 5 24 जा और a इक्वल टू 24 a यानी 5 आदमी और आ गया तो कितना दिन में काम समाप्त होगा a माने थे a का वैल्यू निकल गया 24। हैंस the work will completed, the work will finished in 24 days and it will last for 24 days. It will last for 24 days. ये 24 days में काम complete हो जाएगा। Now question number 4. Parallel sides of an isosceles trapezium are 15 centimeter and 31 centimeter. Isosceles trapezium. Parallel sides of an isosceles trapezium ABCD is isosceles trapezium. Parallel sides are 15 and 31 centimeter. तो गिवन क्या सब दिया हुआ है गिवन ABCD is a trapezium. AB parallel DC, AD equal to BC, isosceles trapezium. AD equal to BC equal to 17 centimeter each. AB equal to 15 centimeter and CD equal to 31 centimeter. ये है 15 सेंटीमीटर, ये है 31 सेंटीमीटर, ये है 17 सेंटीमीटर, ये है 17 सेंटीमीटर। एरिया इस ट्रैपेजियम का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रैपेजियम ABCD इक्वल टू व्हाट? ट्रैपेजियम का एरिया क्या हो, क्या दिया हुआ, क्या निकालना है, पहले लिख दिए। अब आते हैं इसका एरिया निकालने के लिए। अब AD के पैरेलल B से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ BM पैरेलल AD, ड्रॉ BM पैरेलल AD। यह पैरेलल इसका है और ये तो पैरेलल इसका है ही, दिया हुआ है। तो
ABMD is a parallelogram. Hence, ABMD is a parallelogram. यह parallelogram है. Therefore, BM is equal to AD is equal to 17 centimeter. BM is equal to AD 17 centimeter. क्यों? Opposite side of parallelogram. Opposite sides है पैरेललोग्राम का, इसलिए AB is equal to DM, DM is equal to AB is equal to 15 सेंटीमीटर. क्यों? तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है. DM 15 और पूरा DC 31, तो CM is equal to, hence CM is equal to CD minus DM. 31 minus 15 16 सेंटीमीटर. ये निकल गया 16 सेंटीमीटर. ये 17, ये 17, ये 16. It is BMC is isosceles triangle. दोनों साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल. यहाँ से यदि एक एल्टीट्यूड इस पर ड्रॉ करें, BQ एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, तो एल्टीट्यूड बाइसेक्ट द बेस, बेस को बाइसेक्ट करेगा. हैंस एल्टीट्यूड BQ बाइसेक्ट्स CM, CM को बाइसेक्ट करेगा. देयरफॉर CQ इज इक्वल टू हाफ CM, CQ इज इक्वल टू हाफ CM, CM का आधा. CM है 16, तो CM का आधा 8 सेंटीमीटर. CQ निकल गया 8 सेंटीमीटर. ये है 17 सेंटीमीटर. तो इन राइट एंगल BCQ, इस राइट एंगल से बाय पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम ट्रायंगल BCQ, from triangle BCQ, BQ is equal to a square root BC square minus CQ square. वैल्यू पुट कर दिए. BC 17 स्क्वायर और माइनस 8 स्क्वायर. 289 माइनस 64 225, 225 का स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर. ये निकल गया, एल्टीट्यूड निकल गया. ट्रैपेजम का एल्टीट्यूड मालूम हो गया. एरिया ऑफ ट्रैपेजम, एरिया ऑफ ट्रैपेजम ABCD, that is equal to 1/2 into sum of parallel sides, sum of parallel side AB plus CD into altitude, altitude BQ. वैल्यू पुट कर रहे हैं. 1/2 into 15 plus 31 into 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. 46 डिवाइडेड बाय 2, तो 23 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 345 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ trapezium ABCD, that is equal to 345 centimeter square.
Now comes to last question of this CT2, question number 5. A cylindrical pipe 42 cm long has inner diameter 14 cm and width of pipe is 1 cm. If mass per unit volume of metal used in making pipe is 8 gram per centimeter cube, find mass of pipe. ये hollow cylindrical pipe है, hollow cylindrical pipe. जिसका की लेंथ हाइट 42 सेंटीमीटर है, ये हाइट 42 या लेंथ ऑफ पाइप 42 सेंटीमीटर, और इसका इनर रेडियस ये दिया हुआ है, सॉरी इनर डायमीटर ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और विड्थ ऑफ पाइप की मोटाई, विड्थ ऑफ पाइप की मोटाई ये दे दिया है 1 सेंटीमीटर, और डेंसिटी ऑफ मेटल यूज इन मेकिंग पाइप इट इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दे दिया है। कहता मास ऑफ पाइप कितना, व्हाट इज द मास ऑफ पाइप। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन length of pipe h, height of pipe h is equal to 42 centimeter. Inner diameter d1 is equal to 14 centimeter. Therefore, radius r1 is equal to 7 centimeter. Width of pipe, x is equal to 1 centimeter. पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, विड्थ ऑफ पाइप 1 सेंटीमीटर. Therefore, outer radius r2 is equal to r1 plus width x. 7 plus 1 centimeter, 8 centimeter. Rho density of the metal used in making pipe. पाइप जिस मेटल का बना है उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है, डेंसिटी कितना है, तो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इट इज ए यूनिट ऑफ डेंसिटी. तो कहता पाइप का मास क्या होगा, मास ऑफ पाइप, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज इन मेकिंग पाइप, पाइप को बनाने में कितना मेटल का व्यवहार हुआ. तो वॉल्यूम ऑफ मेटल इसको याद रखना है, पाई एच इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज इन मेकिंग पाइप, पाइप को बनाने में कितना मेटल का व्यवहार हुआ, उसका वॉल्यूम क्या हुआ. तो पाई एच इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू डेंसिटी रो, सबका वैल्यू पुट कर दिया. पाई 22/7 इंटू एच 42 इंटू R2 8 स्क्वायर माइनस R1 7 स्क्वायर इंटू डेंसिटी 8 ग्राम. मास का यूनिट ग्राम.
22 into 6, 132, into 8 square, 64, and minus 49. 64 and minus 49, the 15. Into 8 gram. ग्राम। जब ग्राम 1000 से अधिक हो जाए तो इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा देंगे। दैट इज इक्वल टू 15.84 kg। मास ऑफ पाइप इतना kg या इतना ग्राम भी लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। डू द